Sorry. हेलो ऑल, वेलकम बैक. Hey guys, सो आज हम डिस्कस करेंगे personal number. How to get personal number quickly. या टू मतलब यहाँ टाइम लगता है तो जल्दी कैसे ले सकते हैं वो. So we are going to deep dive in the process, and we have experienced the same by our own self, right? Yeah. For me and my So, wife both. हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल यू नीड, And how can you get it early? अर्ली, Like a cheat code or something. सब कुछ, एवरीथिंग विल डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. Okay. Okay. So step number 1 is आप जितनी जल्दी लैंड करते हो स्वीडन में, as soon as possible, you need to go to your nearby Skatteverket. That is tax office here. Skatteverket. And you need to like book it as soon as possible. And for us, we landed on 16th, and on 17th we went to Skatteverket. We were not aware of the process, but we got to know like you can drop in, right? Either you can book your time slot via website, Skatteverket website, and then you can drop in, right? Or you can just drop in. वहाँ पे machines होते हैं, you can drop in and just select your number. You get a Queue coupon, number. and then you can go token number. Okay, so as soon as possible, do it, because this is a very important document in Sweden. Exactly. And Without your everything personal is- number, you cannot do anything. Yep, everything in Sweden is actually working with your social security number. Be it it's home, be it it's your cell phone number or a salary or a bank account, anything and everything which you can think of, right? That is going to be linked with your personal number. Yeah. So हम लोगों ने अपना पासपोर्ट और हमारा जो Residence रेसिडेंस परमिट था वो लेके तो गए थे. Deputation letter from office. हाँ, डेपुटेशन लेटर जो इनका आया था ऑफिस से वो लेके गए थे, एंड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लेके गए थे क्योंकि वी वर नॉट अवेयर कि कब कौन क्या मांग ले. सो वी टुक इट एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, जितने इंडियन डॉक्यूमेंट्स थे हमारे हम सब ले गए थे कि कब क्या मांग ले, तो we should be prepared. And since we were new, we were not aware, but now we know like if you take your residence permit, that is your visa card, your passport, right, and your deputation letter, and That will be enough. that will be enough. And we were extra prepared, like we had like passport size photo, like India में जैसे form के साथ होता है ना, every form needs a passport size photo, so that we did, right? But you don't need and it. we had our Aadhaar card, voter ID card, PAN card, in each and every documents you can think of, right, which we had from India. सो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाना है. वो एक आपका पासपोर्ट, दूसरा आपका रेसिडेंस परमिट जो आपको मिला है वो, एंड तीसरा आपका है जो आपको डेपुटेशन लेटर मिला आपकी कंपनी से वो. ये 3 Work offer बेसिकली details. मेन है. बाकी नहीं पूछते हैं वो लोग. But बट आप ले जाना, लेकिन ये तीन तो फॉर श्योर आपको मस्ट हैव मस्ट हैव. पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डे 1 में, राइट? और आप वहाँ जाओगे, ड्रॉप इन करो, अपना क्यू नंबर टोकन लो, वेट करो पेशेंटली, आपके नंबर आएंगे, ठीक है? एंड देन वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी उनसे, एंड दे आस्क यू टू फिल अ फॉर्म. आपको कंप्यूटर दिया जाएगा या लैपटॉप दिया जाएगा जिसमें आपको बोला है कि आप अपना डिटेल्स फिल अप करें इसमें. So we got 2 different desktops for me and her, and फर्स्ट डे we got help from a man जो बहुत ही अच्छा था. ही वॉज वेरी जेन्युइन, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जितना पूरा फॉर्म था इट वॉज इन स्वीडिश लैंग्वेज. सो वी वर लाइक वी कुडंट अंडरस्टैंड. सो वो उसने पूरी मदद करी कि ठीक है, यू जस्ट आपको यहाँ ये भरना, आपको यहाँ ये भरना. ही टोटली टोल्ड अस. प्लस इनका कीबोर्ड भी जो है वो स्वीडिश कीबोर्ड है, स्वीडिश अल्फाबेट्स कीबोर्ड है. तो वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट कीबोर्ड क्योंकि हम वैसा यूज नहीं करते हैं. तो ही हेल्प्ड अस टाइपिंग ऑल्सो कि कैसे टाइप करना है. तो यहाँ के फंक्शंस अलग है कीबोर्ड. And one important item is you should have a address to fill that form. Yeah. That is one thing. And second is you should have a phone number to get an alert, right? तो ये 2 चीज़ें बहुत important है. If you can get these 2 things early. क्योंकि स्वीडन में आज भी ऐसा है कि आपको सारे चीज थ्रू पोस्ट आते हैं, मेल और ये सब नहीं आता है. So address is a must have, right? Apart of those 3 documents, your cell phone, which you are going to keep a kind of a longer term,
and an address where they can send you a documentation, approval or rejection in any kind of information, right? Because that will be linked everywhere. और ऐसा है कि फॉर द टाइम बीइंग यू डोंट हैव एन एड्रेस, यू गेव योर फ्रेंड्स एड्रेस, तो लेटर ऑन यू कैन चेंज इट. आप कभी भी जाकर के उसको चेंज कर सकते हो, पर फॉर द टाइम बीइंग कहाँ आपका पोस्ट हो सके लेटर, आपको एक एड्रेस देना पड़ता है. लेटर ऑन जाके आके आप कभी भी आप अपना अपडेट कर सकते हो एड्रेस. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगते हैं. यू कैन अपडेट सम ट्रस्टवर्दी पर्सन का एड्रेस जहाँ पे आपका पर्सनल, क्योंकि जैसे आप फॉर्म फिलअप कर दोगे फिर आपका पर्सनल नंबर एक पेज में, मतलब कुरियर में लेटर वाइज जाएगा, एंड उसमें आपका पर्सनल नंबर मेंशन होगा कि आपको अलॉट हो गया पर्सनल नंबर. एग्जैक्टली. मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जैसे अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराने जाओगे, आपका पर्सनल नंबर स्कैन होगा, दैट विल बी योर एड्रेस. आप कुछ भी लेने जाओगे, बैंक अकाउंट लेने जाओगे, आपका पर्सनल नंबर स्कैन होगा, दैट विल बी योर एड्रेस, राइट? आप सेल फोन लेने जाओगे और मे बी पोस्ट पेड काइंड ऑफ सिम कार्ड्स, राइट? तो आप पोस्ट पेड ही है. these two things are important, right? Go there, fill the form as soon as possible, because अगर ये नहीं है तो आपको काफ़ी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ सकता है. आपके घर के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है. आप कुछ मतलब पोस्ट पेड टाइप के कनेक्शंस नहीं ले सकते आप मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए जो जिनके पास पर्सनल नंबर नहीं है उनके लिए क्यू काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी है. हाँ. एंड पीपल हु आर हैविंग लाइक अ लेस टर्म, लाइक लेस देन 15 months, उनके लिए एक डिफरेंट नंबर जनरेट करते हैं ये. टेम्पररी होता है वो. हाँ. Scatterworkit is not going to allow you to have a personal number, right? And in that case, you are going to get a kind of a coordination number. Okay, so that is another scenario, and we'll talk about it in another video. Okay, how to get your coordination number early. तो जैसे आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, उसके बाद आपको एक पोस्ट के थ्रू एक लेटर आएगा कि आपका पर्सनल नंबर आ चुका है. आपको अपना कार्ड बनवाने के लिए फिर स्कैटरविकेट जाना पड़ेगा. ओके, तो एक बार जब आप अपना फॉर्म भर देते हो, सबमिट कर देते हो स्कैटरवर्किट में, दे विल आस्क यू टू गो बैक एंड वेट. और जो वेट टाइम है दैट इज़ अगेन 3 to 15 weeks, राइट? दैट्स व्हाट वी हर्ड. बट हमारा 12 दिन के अंदर आ गया था. और हमारा जो आया था, हमारे पास भी अपना घर नहीं था, तो हमारी मेल जो थी वो हमारे फ्रेंड के घर पे आई थी. ठीक है. और एक बार अगर वो मेल अगर आपके पास आ जाती है, आपका पर्सनल नंबर अलोकेट हो जाता है, तो दैट इज़ जस्ट अ नंबर, राइट? और यहाँ पे वो समटाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो कार्ड मांगते हैं, राइट? जैसे अपना आधार कार्ड का जैसे इतना बड़ा कार्ड है ना, उतना बड़ा कार्ड बनता है. एंड दैट कार्ड इज रिक्वायर्ड बिकॉज वही उसको स्कैन करते हैं, इंसर्ट करके चिप होता है. ठीक है. तो उसके लिए फिर आपको यू हैव टू डू अनदर प्रोसेस, राइट? दिस वाज स्टेप 1, एंड स्टेप 2 इज यू हैव टू बुक योर स्लॉट अगेन टू द स्कैटरवर्किट, राइट? इस केस में वी विल सजेस्ट कि आप अपने नियर बाई स्कैटरवर्किट में बुक करें, बट इट कैन बी अ सिनेरियो कि उसकी जो वेटिंग पीरियड है, बुकिंग वेटिंग पीरियड ओनली, ऑनलाइन बुकिंग जो आप करोगे बहुत 2 वीक की भी हो सकती है वेटिंग पीरियड, 2 month की भी वेटिंग पीरियड हो सकती है. तो विल सजेस्ट टू चूज ब्रोमा. नॉट जस्ट ब्रोमा, जहाँ आप हो, आप दूसरा स्कैटरविकेट भी देख सकते हो जहाँ आपको इजीली और जल्दी स्लॉट मिल जा रहा है. तो ट्राई एंड सर्च ईच एंड एवरी स्कैटरवर्किट ऑफिस जहाँ आपको जल्दी मिल जा रहा है. बट वी सेलेक्टेड ब्रोमा क्योंकि हमें वहाँ पे 3 दिन के बाद ही मिल गया था, स्लॉट मिल गया था. तो ब्रोमा विल सजेस्ट, ठीक है. और दूसरा चीट कोड ये है कि यू डोंट रिजर्व रिजर्वेशन टाइमलाइन एंड गो एंड ड्रॉप इन दैट केस यू विल बी एंटरटेन, राइट? देन आपका जो वेटिंग पीरियड है वो आप स्किप कर जाओगे. वेटिंग पीरियड है ना जो ऑलरेडी 2 वीक का या 2 month का, आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा. या तो आप फर्स्ट ऐसा टैक्स ऑफिस देख लो स्कैटरविकेट जिसमें वैकेंसीज, जब आपका अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जा रहा है. ऐसा नहीं कि आप जहाँ आपका नियर बाई आप वहीं जा सकते हो, आप कोई में भी जा सकते हो. दैट डजंट मैटर कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं का जाना. हम शीस्ता में थे, हम रोमा गए थे. हाँ, वैसा कुछ नहीं है. पर आपको जहाँ जिस स्कैटरविकेट में जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है आप वहाँ चले जाओ. अदरवाइज आप ड्रॉप इन भी कर जाओगे तो वो आपका काम कर देंगे, एंड आपका आईडी कार्ड बना देते हैं, वो मना नहीं करेंगे. एंड जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो रिजर्वेशन के लिए, राइट, आप टाइम स्लॉट बुक कर रहे हो, तो यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड. देयर आर 2 different options. One is for ID collection, and that's what we did. We booked for ID collection, and they told us आप तो अपना फोटो क्लिक करवाने आए हैं ना फॉर तो पर्सनल नंबर, राइट? प्लस ऐसा है कि दे डोंट टेक कैश, दे टेक ऑनलाइन मनी. आपको पर पर्सनल कार्ड 400 SEK लगेगा. एग्जैक्टली. तो आप
आप ऐसा नहीं है कि जा करके कैश निकाल के दे दिए, नहीं, आपको Ask ऑनलाइन your पेमेंट friend, करना पड़ेगा। right. जो आपका हेल्प कर दे ऑनलाइन पेमेंट करने में, आपका फ्रेंड जो पहले से सेटल्ड है यहाँ पे, जिसके अकाउंट में पैसा है, वो आपके बिहाफ में पे कर दे, एंड देन यू पे दैट पर्सन। When you go to your scatter workit, right, second time, then again you need to like keep some of your documentation, but जो सबसे important चीज़ है ले जानी, वो है आपके लिए जो मेल आई है, राइट। हाँ, जो आपको पोस्ट के थ्रू आया है लेटर, वो ले जाना है। अगर आप बुक करके जाओगे तो देयर विल बी कपल ऑफ रिमाइंडर्स, राइट। आपकी ईमेल आईडी पे आएंगे, आपके सेल फोन मैसेजेस पे आएंगे। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये सेल फोन नंबर और जो आपके एड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, और वहाँ पहुँच गया तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए, उसके बिना वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। इवन दो यू गो देयर एंड से कि मेरा पर्सनल नंबर आ गया है एंड आई मिस दैट पर्टिकुलर लेटर, वो आपको वापस जाने को कहेंगे और कहेंगे कि फिर दोबारा आओ, दोबारा बुकिंग में जाओ, पूरी प्रोसेस वापस होगी। हाँ, तो फिर वहाँ जाके आप ड्रॉप इन करोगे। उसके बाद क्या होता है कि आपको बुलाते हैं, जैसे आपका हाइट लेंगे, आपका फ़ोन नंबर लेंगे, जो आप स्वीडन का फ़ोन नंबर है आपका वो, और सिग्नेचर करेंगे एंड फ़ोटो खींचेंगे, जैसे जस्ट लाइक अ वीज़ा ऑफिस, जिसमें आपका वीज़ा ऑफिस में आपका एक सामना कैमरा आता है, उससे फ़ोटो खींचता है एंड यू डिजिटली साइन और अपना पर्सनल नंबर देते हैं, एंड दैट्स इट, यू आर डन। फिर वो आपको एक और स्लिप देंगे, जिसमें आपका आईडी कार्ड, पेमेंट स्लिप होगा और आईडी कार्ड। आपको पूछेंगे कि आपने पे किया है कि नहीं, एग्जैक्टली। तो आपको पेमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपने यहाँ पेमेंट कर दिया है इसके लिए, एंड फिर वो आपको एक स्लिप निकाल के देंगे। फिर आप वो स्लिप ले करके कम बैक टू होम। फिर आपको आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आएगा। जब आईडी कार्ड का बनने का टाइम स्लॉट है, आई गेस 7 डेज, 1 वीक और 15 डेज आइडियली फिर वही है, 3 वीक से 15 वीक का प्रोसेस है, इसका बट वी गॉट टू नो लाइक कि 10 डेज के अंदर आ जाता है। ही सेड कि 7 डेज में आ जाएगा। हमें स्कैटर वर्किट ऑफिस से ही बता दिया गया था कि विद इन 10 days यू आर गोइंग टू गेट इट। हाँ, एंड 2 things टू नोट हेयर व्हेन यू गो फॉर योर आईडी कार्ड फोटो, राइट। एंड तो आपको सबसे पहले ये करना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जहाँ से कलेक्ट कर सकते हो ईजी वे में, आप उनको बता देना कि आई कैन कलेक्ट फ्रॉम, लाइक हमारे यहाँ पे शिस्ता था, वी कुड हैव कलेक्टेड इन शिस्ता, बट हम अनअवेयर थे, राइट। हमें बताया नहीं गया था। ही आस्क्ड अस कि यहीं से कलेक्ट करोगे, एंड वी वर हैप्पी टू कंप्लाई, राइट, कि हाँ यहीं से करेंगे। देन वी हैड टू गो टू ब्रोमा अगेन। वी कुड हैव सेव्ड आवर जर्नी, और हम यहीं से ले सकते थे। हाँ, ये बात हमें बाद में पता चला कि हम उनको कहते थे कि हम शिस्ता से कलेक्ट करेंगे, तो हमारा आईडी कार्ड यहीं आ जाता है, हम यहीं से ले। एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग इज, गलती से हम आप सीखे तो आपको बता रहे कि आप ये गलती मत करना। हाँ, एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको अपना एड्रेस तब तक मिल गया है, आपको अपना घर मिल गया है, राइट, देन चेंज योर एड्रेस। आप उसके लिए अनदर ड्रॉप इन टिकट ले सकते हो सेम टाइम पे, सेम एज स्कैटर वर्किट में, जहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लिक हुई है, फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं, ठीक है, और आपने डिजिटली साइन किया है, वहीं पे आप एक और ड्रॉप इन ले लो और अपना एड्रेस चेंज कर लो। दिस विल हेल्प यू अलॉट। सो दीज आर द चीट कोड्स, राइट। फर्स्ट इज इफ यू वांट टू स्किप द लाइन, जस्ट ड्रॉप इन, राइट, एंड ड्रॉप इन टू द नियरेस्ट, और थोड़ा सा जर्नी करना पड़े तो इट्स ओके, यू कैन, उतना तो आप कर ही सकते हो, दैट यू कैन अफोर्ड, राइट, बिकॉज आपके डेज सेव होंगे, वीक सेव होंगे, राइट। डेज वीक सब सेव होंगे, प्लस आपका बैंक आईडी भी खुल जाएगा, आप मेडिकली एक्सेस ले पाओगे सब कुछ का। तो फिर इतना तो थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन ठीक है, वर्थ इट है। एंड थर्ड विजिट, और आपकी थर्ड विजिट होगी स्कैटर वर्किट में, वो होगी कलेक्शन के लिए। अगेन सेम प्रोसेस है, आप अपनी बुकिंग करके जा सकते हो, टाइम स्लॉट बुक करके, और आप ड्रॉप इन कर सकते हो। दिस टाइम आई वुड सजेस्ट नॉट टू बुक, राइट, जस्ट ड्रॉप इन, एंड वहाँ पे जा करके आप अपनी क्यू नंबर को टोकन ले लो, ठीक है, एंड वो स्लिप ले जाना जब आप अपना आईडी कार्ड फोटो खिंचवाने आए थे, एंड आपको एक स्लिप दिया गया था, आप वो स्लिप लेके जाना। तो इस टाइम आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है टू कलेक्ट, राइट, दैट इज योर बोथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, राइट। एक जो ईमेल में आई थी, सॉरी आपको मेल आई थी, ठीक है, आपके फ्रेंड के और या फिर आपका अपने एड्रेस पे, और दूसरा वो स्लिप जो आपको मिली थी कि आपका फ़ोटो वगैरह क्लिक हो गया है, ठीक है, ओके। सो थर्ड स्टेप इज़ आप वेट करते हो, आपके सेलफोन पे एक मैसेज आता है दैट योर पर्सनल नंबर इज़ रेडी, ओके, एंड दैट टाइम, बाय दैट टाइम न्यू द हैक, राइट। सो थर्ड स्टेप इज़ आप अपने फ़ोटो आईडी के बाद अपने घर जा सकते हो। आप वेट करो, यू वेट, राइट, फॉर अ काइंड ऑफ अ टेक्स्ट मैसेज और एनी नोटिफिकेशन हो ईमेल बाय स्कैटर वर्किट दैट योर आईडी कार्ड, राइट, इज़ रेडी टू कलेक्ट, एंड देन you need to do the same process again, that you need to book a slot
right? And by that time we knew the cheat code, right? We're supposed to do is drop in. We simply dropped in, Yeah. and you don't have to forget your receipt, right? One is the email which one is the mail. One is the mail and text you receive on your phone, and other is the slip you received while you Exactly. clicked your photo. जब आप अपना बायोमेट्रिक्स देने आए थे, then you got a slip. वो slip आप उसको present करो, वो आपके सामने लाके. And they might ask you for payment once again, right? Because it can be a scenario that उनको वो लिंक नहीं कर पाए हो या पेमेंट तो आप डिपॉजिट उनको हो नहीं अपना पाई हो. पेमेंट वाला जो मेल है जो आपका आया हुआ मेल आईडी में उसको आप सेफ रखना कि आप उसको दिखा पाओ. Okay, but safe side we will ask you to keep 2 documents with you. One is passport and then second residence permit, right? Just for security perspective. अगर वो आपसे मांग लेते हैं तो you should have it. वापस ना दौड़ाए. हाँ. आप उसको सेफ्टी के लिए ले जाना, लेकिन वैसे वो मांगेंगे नहीं. Exactly. आप अपना वो स्लिप ले जाना जो आपको मिला था, वो स्लिप आप दिखाओगे, आपका आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा, एंड यू आर गुड टू गो. आप यू आर रजिस्टर्ड एज अ स्वीडिश सिटीजनशिप में, आप मतलब सिटीजनशिप बोल रही हूँ, सॉरी, स्वीडिश पॉपुलेशन में आप काउंट हो गए हो. तो आपकी पॉपुलेशन इंडेक्स में आपका नाम ऐड हो जाएगा यहाँ पे. फ्री हो. And then you can book your postpaid numbers. You can easily book any rented बैंक आईडी apartment. अप्लाई कर सकते Right, हो. आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, right? And everything will be sorted out. सो ये था easiest way to get your ID, मतलब पर्सनल नंबर है. Drop it. ड्रॉप इन है. चीट कोड इज ड्रॉप इन. डोंट वेट हाँ. कि मैं जाऊंगा वो बुकिंग करके ही जाऊंगा कि मेरा स्लॉट बुक रहेगा. अगर आप ड्रॉप इन कर जाओगे, they will give you the service. And ऐसा then नहीं do है कि they everything won't. in line, right? If you have to change your address, if you have to change your cell phone number, everything. सब कुछ कर देंगे, एंड दे विल हेल्प यू टू डू ऑल द थिंग. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, तो आपको वो सब कुछ बता देंगे वहाँ पे जा करके. पर वो है कि अगर आप वेट करोगे कि अच्छा मैं ऑनलाइन बुकिंग करके जाऊँगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें. एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद क्या होगा कि यू विल फील हेल्पलेस, क्योंकि विदाउट योर पर्सनल नंबर आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे. हमें फील हुआ क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे थे कहीं. बहुत जगह हमारा फॉरेक्स कार्ड नहीं चल रहा था. तो अब बहुत जगह ऐसा है कि फॉरेक्स कार्ड भी नहीं चल रहा था और वो लोग कैश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. टाइम फील होता है कि अरे यार, अब यू नेवर नो, आप सामान खरीदने के बाद आपका कार्ड नहीं चले तो यू फील दैट कि अब क्या करें. और एक अनजान शहर में, अनजान देश में, एक्चुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट? एग्जैक्टली. और उसके बाद कोई हेल्प मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है वो. इसीलिए जितना जल्दी आप पर्सनल नंबर लेकर, क्योंकि यहाँ बैंक आईडी खुलने में भी एक अच्छा खासा टाइम लगता है. सो दैट इज फॉर नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू गेट योर बैंक अकाउंट इन वेरी इजी वे. इज इम्पोर्टेंट. पहले आते साथ पर्सनल नंबर के लिए प्लीज अप्लाई. अगर आप सेम डे जा सकते हो तो सेम डे प्लीज. ऐसा नहीं है कि हस्बैंड आ गया है, वाइफ नहीं आई है, तो वाइफ के बिहाफ में हस्बैंड जाके कर सके. नहीं, जो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है, yes, वही लोग अपना आया करके पर्सनल नंबर ले सकता है. एंड जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो आए स्वीडन और ये काम करे, क्योंकि उसके बिहाफ में पर्सनल नंबर आप हस्बैंड वाइफ दूसरे को शेयर भी नहीं कर सकते. वैसा है, मेरे बिहाफ में ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बिहाफ में मैं कुछ नहीं कर सकती. पावर ऑफ अटॉर्नी एक चीज है, दैट इज फॉर कलेक्शन, नॉट फॉर क्रिएशन. एग्जैक्टली. मेरा पर्सनल नंबर ही कैन नॉट यूज अनलेस एंड अनटिल इट्स मेडिकल इमरजेंसी. मैं एडमिटेड हूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ. ओनली इन दैट केस ही कैन यूज. अदरवाइज मेरा पर्सनल नंबर कोई एक्सेस इनको नहीं. अदरवाइज जो आपके आईडी कलेक्ट करे ना, वही बोल देंगे. हाँ, कि अपना, जैसे आप फॉर्म अपनी वाइफ के लिए भर रहे हो ना, तो क्यों ये नहीं भर सकती. Exactly. वैसा हो जाता है. This is how you are going to get answers. तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ. ऐसा नहीं है कि एक जन आ गया तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसके बदले भी अप्लाई कर दूँ. वो नहीं होता है. वाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वाइफ के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी मेडिकल अर्जेंसीज हैं, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय पर्सनल नंबर. बीमार पड़ गए, सपोज आप प्रेग्नेंट ही हो, या आपके बच्चे बीमार पड़ गए हैं, आपको बच्चों के लिए डॉक्टर चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो सब जगह वो पर्सनल नंबर आपके पास. एक ऐप आता है, उसको मैं वो भी बताऊंगी आपको फ्यूचर में. एक ऐप आता है जिसमें आप बुकिंग कर सकते हो, डॉक्टर के पास सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी दे विल आस्क फॉर योर पर्सनल नंबर. इफ यू डोंट हैव अ पर्सनल नंबर यू विल बी चार्ज्ड ह्यूज अमाउंट. एंड वेटिंग पीरियड विल बी वेरी लॉन्ग. पीरियड बहुत ज़्यादा लंबी होगी. एंड तब तक मैं क्या पता आप खुद ही ठीक हो जाओ. तो फिर दैट डजंट मीन कि डजंट मेक सेंस कि आप डॉक्टर के लिए दौड़ो, क्योंकि इंडिया में लोग पैनिक करते हैं, तुरंत दौड़ जाते हैं इमरजेंसी में. यहाँ नहीं होता वैसे. You have to wait. You have to wait. Be patient. Emergency में भी you have to wait even if you have
My maximum critical waiting case. hours in emergency is 48 hours. Yeah, That you might have to. yeah, we experienced it. But यही है कि पर्सनल नंबर है तो बहुत सॉर्टेड आपको हो गया. पर्सनल नंबर है तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा. आपके बिहाफ में कोई नहीं ले सकता आपका पर्सनल नंबर, ना उसके इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता. ऐसा हो सकता है ना कि जैसे फॉर्म फिलअप में फोटो साइन सिग्नेचर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा था, पर ऐसा नहीं है कि ये अकेले गए तो अपना भी फॉर्म भरे मेरा भी फॉर्म भरे. नहीं, ये अपना चाहेंगे तो सिर्फ अपना ही फॉर्म भरेंगे, एंड मैं जाऊंगी अपना तो मैं अपना फॉर्म भरूंगी. मेरे बिहाफ में फॉर्म भी नहीं भर सकते. एंड पर्सनल नंबर विल कनेक्ट यू विथ योर बैंक अकाउंट. आप अपनी वाइफ को पैसे भेज सकते हैं. एंड देन अनदर थिंग इज लाइक बिग थिंग इज बैंक आईडी. विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट सेक्शन. सो इस वीडियो को एंजॉय करना विद ब्लूपर. बाय बाय. Bloopers? Don't please don't.